अच्छा। Great. Okay. So today we are basically going to start with what is voters list. ठीक है, वोटर्स लिस्ट क्या होती है? वोटर्स मतलब वो इंसान जो कि वोट दे रहे हैं. द पर्सन हु वोट्स आर कॉल्ड वोटर्स. ठीक है, तो आप लोग भी यही सोच रहे होगे ना, तो बस जो लोग वोट दे रहे हैं उसकी लिस्ट, वो वोटर्स लिस्ट, राइट? लेट्स कंटिन्यू. वोटर्स लिस्ट डेफिनेटली बेटा वो चीज तो है ही जो आप सोच रहे हो, उसके अलावा भी काफी सारी बातें हैं अबाउट वोटर्स लिस्ट. ओके, लेट्स सी. व्हेन there is a written list with name of people who are able to vote, जो 18 years and above, who have right to vote and who are eligible to vote, right? Which is prepared by Election Commission of India. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इस तरह की लिस्ट को रेडी करती है विद द नेम ऑफ पर्सन हु आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, right? And this list gives you the surety that in country we have equal opportunity of choosing our political representatives, the one we want to select, right? We have that full right to choose our favorite representative or the one whom we want to rule the country and we want that to rule us. We have complete right for that kind of selections. ठीक है? Regardless to this person, there is no bias, no prejudice based on caste, creed, color, gender, or anything. There is no biasness, there is no partiality. Every citizen of and above 18 years of age is eligible to vote. राइट हर एक इंसान जो कि 18 इयर्स और अबव है वो वोट के एलिजिबल है, irrespective of caste, class, creed, whatever, doesn't matters at all. Each and every citizen is eligible to vote, right? In fact, this is very important step and it is linked to the first condition of a democratic election. We live in a democratic country and this is the first point where it shows that we have democracy by having right to vote. प्लीज डोंट फॉरगेट, अगर फर्स्ट फीचर आपको डेमोक्रेसी का लिखना है तो फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट यू हैव राइट टू वोट, तभी आप डेमोक्रेसी में हो, right? So it is the important step of democratic election that you have right to vote, right? And this clarifies you that everyone have equal opportunity to choose their representatives, right? See, there are many different kinds of citizens, right? अलग अलग तरह के citizens होते हैं, है ना? वहां पे हर एक अलग सिटीजन अलग तरीके से उसकी सोच, उसकी फेस, उसके स्टैंड ऑफ लिविंग, हर तरीके से वो डिफर करते हैं एक दूसरे को. द वे आई एम, द यू आई एम, द वे यू आर, द वे योर फ्रेंड्स आर इज डिफरेंट, right? We are not at all same. We all have different taste, different standard of living, different point of view, different thoughts, different ideas, different opinions, right? So this elections, this voting enhance that different opinions and views of citizen. That's why it gives individual right to citizen to vote to promote equality among everyone. That whether the citizens are rich, poor, highly educated, not so educated, right? And some are not educated at all. Not so educated and not educated at all.
they all have equal right to vote. समझ में आई बात? They all have equal right to vote, right? Even you can see this at your textbook. In your textbook, page number 65, there is a form given to you, right? There is a form given to you which shows how this has been filled, what kind of details are being included, and what other things are there which are taken care of while filling this voters list form. ठीक है? This is all about voters list. Now we will see our very next topic, which is nomination of candidates, right? Which is nomination of candidates. How the candidates are being nominated to get votes, to get elected by different citizens. Okay? See, very first thing, if you want to be included in a nomination list, you must be Indian. Right? You must be Indian. There should be no NRI. There should be no, like, you know, kahin aur ki citizenship nahi chalegi. You must be Indian citizen, and your age should be minimum 25 years. Right? Minimum 25 years. There are some restrictions on people, that they should not have criminal records. विथ एक्सट्रीम केसेस वाले क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होने चाहिए अगर आपको नॉमिनेशन के कैंडिडेट्स बनना है तो. ओके, दे हैव टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड दे हैव टू गिव अ सिक्योरिटी डिपॉजिट. राइट? अगर किसी को कैंडिडेट बनना है तो उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, एंड दे हैव टू फिल अ नॉमिनेशन form as well, where all the details regarding them and their families are being filled, such that that party should have idea कि अगर वो इंसान है तो उसकी क्या बेसिक डिटेल्स के साथ वो इंडिया में रह रहा है. Okay? Even after having that, there are some things like there is a legal declaration. एक लीगल डिक्लेरेशन किया जाता है विथ डिटेल ऑफ पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द कैंडिडेट. अगर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है उस कैंडिडेट के खिलाफ, उस बारे में उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हैं, एंड स्पेशली देयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. दैट मीन्स इन शॉर्ट ईच एंड एवरी डिटेल including personal and public information, public life. There should be every detail to be surveyed by the different sources for that particular nominated candidate. वो कहाँ पे रहता है, क्या करता है, everything. Some more points regarding this, that every candidate has to make a legal declaration, right? There should be a legal declaration done by that particular candidate with some things. What are that things? That whatever serious criminal cases are against that particular candidate, if it have, right? If that candidate have some क्रिमिनल केसेस, तो उसको बताना होगा पहले कि ये चीज को लेके ये डिटेल्स के साथ मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस थे. ऑल द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी उसके फैमिली में है, उसके पास इतनी जमीन है, इतने घर हैं, या वॉट एवर प्रॉपर्टीज दैट पर्सन हैव, किसी बैंक से उसने लोन लिया है, किसी से उसने उधार लिया है, इफ एनी लायबिलिटीज दैट ही हैज टू पे इन फ्यूचर, every detail has to be given by that candidate in the Commission of India, right? Whatever the organizational bodies. Okay? Educational qualification of the candidate. उन्होंने कितना क्वालिफाई किया है, एजुकेटेड, कितने वो एजुकेटेड है, कितने क्वालिफाई है,
That detail has to be mandatorily given by that candidate as a declaration. Right? And one very important thing, ये जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पब्लिक किया जाता है, जिसकी वजह से लोग उसकी डिटेल्स पढ़े और उनको अपॉर्चुनिटी मिले उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कि वो उस इंसान को वोट करना चाहते हैं या नहीं. Clear? That's why this kind of informations are made public, जिसकी वजह से पब्लिक को ये पता चले कि ये इंफॉर्मेशन जो वो दे रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो जिसको सिलेक्ट कर रहे हैं, whether that person is able or capable according to them or not. That's why these details जो भी हैं that are made public to know. ठीक है. आफ्टर हैविंग वोटिंग, नॉमिनेशंस के बाद यहाँ पे वोट्स काउंट होते हैं. वोट्स काउंट करने के बाद जिनके पास हाईएस्ट वोट होते हैं दैट बिकम्स द पर्सन हु विल बी नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट. ठीक है. दिस इज हाउ अ नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट हैपेंस. समझ में आया? Moving further, we will see what is election campaign. Right? हम देखेंगे कि इलेक्शन कैंपेन क्या है. इलेक्शन कैंपेन की जब हम बात कर रहे हैं, देन इलेक्शन कैंपेन जो है दैट मीन्स whatever preparations are being done before that election taking place. Final list prepare की जाती है. There are many more things which are being prepared during that time. एंड उस टाइम पे जो चीजें करते हैं, जो लोग मिलके एक जगह पे करते हैं, दैट इज व्हाट इज इलेक्शन कैंपेन. राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, सो इन इंडिया इलेक्शन कैंपेन जो है वो 2 वीक्स का होता है. स्टार्टिंग फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वेयर people are supposed to choose one, right? Concluding with 48 hours before the date of polling. जब हम वोट करते हैं उसके 48 आवर्स पहले ये कंसेंट जो है वो क्लोज हो जाते हैं. राइट? एंड ड्यूरिंग दिस कैंपेन कैंडिडेट्स जो हैं वो वोटर्स तक जाते हैं, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं. काफी अलग अलग जगहों पे मीटिंग्स रखी जाती हैं. राइट? एंड रैलीज निकाली जाती हैं. आपको पता होगा, देखा होगा आपने, भाजपा कांग्रेस, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 ही हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में है और दोनों बहुत फेमस हैं. राइट? इसीलिए मैं 2 का ही एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जिससे वो लोग अपनी पॉलिसीज को इन्फॉर्म करते हैं. अगर आपको पता हो तो जब भी इलेक्शंस आते हैं उसके पहले दोनों पार्टी के नेता जो हैं वो पब्लिक मीटिंग्स रखते हैं, टेलीविजन के थ्रू मैसेजेस पास करते हैं, जिससे कि जो लोग वोट करने वाले हैं वो उनको सुन सके और इंफॉर्मेशन उनको जो चाहिए वो मिल सके, जिससे उनका जो सिलेक्शन है कैंडिडेट्स को लेके वो इजी हो जाए. राइट? यस सौमिल? द मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन, राइट, मेन पर्पस क्या है इलेक्शन का? कि लोगों को चांस मिले टू सिलेक्ट देयर फेवरेट रिप्रेजेंटेटिव. The type, the name, the form of government they want and policies what they prefer. दोनों पार्टीज वोटिंग्स के पहले अपनी पॉलिसीज कुछ डिस्कस करती हैं, जिससे कि लोगों को पता चले कि कौन सी पार्टी उनके हित के लिए काम कर रही है. दैट मीन्स विच पार्टी इज वर्किंग more for the social welfare, for the social satisfaction, and the people will consider that points, their policies के कौन सी policies उनको helpful हो सकती हैं, and they will select the party, they will vote regarding that. There are some slogans which are been given during this इलेक्शन कैंपेन के टाइम पे. देयर आर सम स्लोगन्स विच आर बीन गिवन. राइट? यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है इंदिरा गांधी जी का.
right? There are some successful slogans which were given during campaigns like this only. Garibi Hatao, that was used by Congress when it was led by Indira Gandhi in 1971, right? Garibi Hatao. Save democracy. Please underline these things in your textbook also, they are given. That was used by Janata Party in 1977, right? Save democracy. Land to the tiller, that was used by West Bengal Assembly elections of 1977, right? 1977 में वेस्ट बंगाल असेंबली के जो इलेक्शंस हुए थे उस टाइम पे लैंड टू द टिलर करके प्रोवर्ब्स जो थे वो यूज किए गए थे, राइट? यू कैन सी दैट ऑन पेज नंबर 66. वो बोल्ड करके आपको ऑलरेडी पॉइंट्स में दिए हुए हैं दैट विच स्लोगन वाज यूज्ड, सो प्लीज अंडरलाइन दैट पॉइंट्स एट पेज नंबर 66. मैम यस, पेज नंबर 60 भी थे. देयर वर सम स्लोगन्स लाइक प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुस. दिस वाज यूज्ड बाय द लीडर ऑफ तेलुगु पार्टी, right? This was used in Andhra Pradesh during 1983. ठीक है? After having these slogans, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इलेक्शन कैंपेन में there is like no party no candidate. उस पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कंसिडर नहीं किया जाएगा जो कि ब्रिबरी लेता हो या वोटर्स को थ्रेटन करता हो, राइट? ब्रिबरी मीन्स रिश्वत, ओके? जो भी ब्रिबरी लेता हो या वोटर्स को थ्रेटन करता हो, दैट कैंडिडेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ नॉमिनेटेड कैंडिडेट. उसको वोटिंग में इंक्लूड नहीं करते. नेक्स्ट, नो पार्टी नो कैंडिडेट. कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट ना ही ब्रिबरी ले सकता है ना ही वोटर्स को थ्रेटन कर सकता है. उसके अलावा वो किसी को भी रिलीजियन का नाम लेके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट? कल उठ के कोई भी पॉलिटिकल लीडर ये नहीं बोल सकता कि मैं इस रिलीजियन से बिलोंग करता हूं तो इस रिलीजियन के लोगों को तो मुझे ही वोट करना होगा. अनडाउटेडली वो सेम रिलीजियन वाले लोग उसकी वोटर्स बैंक होते हैं. वोट बैंक भी हम पढ़ेंगे आगे, वोटर्स बैंक भी हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन वो स्पेसिफिकली नाम लेके रिलीजन को एम्फसाइज करके ये चीज नहीं बोल सकता पब्लिक में कि आई बिलोंग टू दिस रिलीजन सो दिस रिलीजन पीपल हैज टू वोट फॉर मी. दिस इज नेवर एट ऑल सेड बाय एनी ऑफ द लीडर, पॉलिटिकल लीडर, राइट? इसके अलावा they can use government resources for campaigning. No personal resources are to be used for campaign, right? No party no candidate can use, no party no candidate can expend more than 25 lakhs. They cannot exceed the limit of 25 lakhs for Lok Sabha elections and 10 lakhs for assembly elections. इससे ज्यादा वो लोग कभी भी एक्सपेंस नहीं कर सकते. I would like to correct this one that no party, no candidate can use government resources for campaigning. वो गवर्नमेंट रिसोर्सेज नहीं यूज कर सकते, उनको पर्सनल रिसोर्सेज ही यूज करने होते हैं कैंपेन के लिए, right? There should be no government resource used by any candidate for elections or for advertisement or for selection purpose. They have to use their personal resources for election campaign. Clear? See, next, Yes, ma'am. this propaganda, when we talk about this elections, तो उस time पे this hold election propaganda in places of worship, right? No party no candidate can hold election propaganda in places of worship. जहां पे लोग पूजने आते हैं वहां पे आप इस चीज को नहीं कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा they can use, no party no candidate can use this government
राइट वो लोग गवर्नमेंट व्हीकल्स एयरक्राफ्ट्स अपने वोटिंग के लिए नहीं यूज कर सकते। राइट गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट्स हैं, वो लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो लोग अपने वोटिंग के लिए अपने नॉमिनेशंस के लिए वो लोग यूज नहीं कर सकते। राइट एंड स्पेशली व्हेन देयर इज एन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, मिनिस्टर्स जो हैं दे कैन नॉट टेक एनी पॉलिसी डिसीजन और कैन नॉट स्टार्ट एनी बिग प्रोजेक्ट्स। जैसे ही इलेक्शंस का अनाउंसमेंट हो जाता है उसके बाद कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से वो नॉमिनेटेड कैंडिडेट स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आगे के 5 साल क्या किया उस टाइम पे स्टार्ट करना था। इलेक्शन स्टार्ट हो गए उस टाइम पे आप ये प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट या कोई बड़ा पॉलिसी डिसीजन या कोई चेंज आप नहीं ले सकते। right, there are some limitations with that as well. Clear? ठीक है, polling and counting of votes, how this polling starts, occurs, takes place, and how this counting of votes is being taken care of, right? See, very first thing, there is a name of voters on a voters list. वो पोलिंग बूथ में जाता है, उनके कुछ प्रूफ्स के साथ उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एज ही गेट इनटू द पोलिंग बूथ फॉर वोटिंग, उनके फिंगर पे एक मार्क किया जाता है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, राइट? एंड दे कैन कास्ट द वोट फॉर द कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस। देर इज नो कंपल्शन, देर इज नो थ्रेटनिंग कि आपको इसको ही वोट करना है, आपको बीजेपी को ही वोट करना है, आपको कांग्रेस को ही वोट करना है। देर इज नो कंपल्शन लाइक दैट. It completely depends on that particular voter whom he wants to select, whom he wants to vote. ठीक है? इसके अलावा जो भी एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स हैं उनको उनकी सीट, they are permitted to be seated inside the polling booth for ensuring that a fair voting takes place. ये चीज को इंश्योर किया जाता है कि वो पर्टिकुलरली एक ही वोट कर रहा है, एक इंसान एक ही वोट कर रहा है, देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ वोट बाय दैट सेम इंडिविजुअल। इन सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए एक इंसान पोलिंग बूथ के अंदर भी होता है। ओके, ईवीएम, you know nowadays EVM is taking place for voting, that is electronic voting machine, जो कि वोटिंग कास्ट करने के काम आती है। पहले बैलॉट पेपर्स यूज होते थे जिसमें यूं सर्कल करके एंड होल करके आपको नाम के आगे करना होता था। अब वो बैलॉट पेपर्स नहीं होते, नाउ ईवीएम्स आर देयर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे डायरेक्ट हमको कंसिडरेबल रिजल्ट बाहर मिलता है। सी दिस काइंड ऑफ मशीन इज देयर, यू कैन सी दिस, राइट? ये तरह की मशीन होती है जहाँ पे देर आर न्यूमरस नंबर्स ऑफ पार्टीज विद देयर स्लोगन्स एंड देयर लोगोस आर गिवन, एंड उसमें से आपको फिंगर रख के यू हैव टू जस्ट गिव दैट विच पार्टी यू वांट टू सिलेक्ट। ओके, देन काउंटिंग जो है वोट्स की वो शुरू होती है, सॉरी, काउंटिंग जो है वोट्स की वो शुरू होती है आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इलेक्शन। जब वो सब जगहों पे इलेक्शन ओवर हो जाते हैं उसके बाद काउंटिंग शुरू होती है। एंड फाइनल स्टेज तब होता है इलेक्शन का व्हेन वोटर्स कास्ट देयर वोट, राइट? उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली इलेक्शन डे। जब हम वोट करने जाते हैं दैट इज इलेक्शन डे, राइट? हर एक इंसान जिसका नाम वोटर्स लिस्ट पे है वो उसके ही पास के पोलिंग बूथ में जाके, पोलिंग बूथ यूजुअली गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हर कोई इतना दूर जाके वोट करे ऐसा जरूरी नहीं होता। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट पीपल, सो दैट्स वाई नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल या नियर बाय गवर्नमेंट ऑफिसेज में ये चांस मिलता है आपको। स्कूल्स या ऑफिसेज में, गवर्नमेंट स्कूल्स या ऑफिसेज में आपको जाके वोट करना होता है, ठीक है? नियर बाय स्कूल्स एंड नियर बाय गवर्नमेंट ऑफिसेज में यू आर सपोज टू वोट, ठीक है? That's all for today. This we will be doing tomorrow. What makes an election in India democratic?
ये हम कल करेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जितना आज पढ़ा है प्लीज गो थ्रू दैट, प्लीज रीड दैट ट्वाइस, ताकि कल वाला टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए. Very small part of chapter is remaining, so tomorrow approximately we will be completing the chapter.